بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ، تمام ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی ہے، 50,000 ماہانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، 50,000 سے 1 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر 1% ٹیکس لگے گا، 12 لاکھ سے 22 لاکھ سالانہ تنخواہ پر 6,000 روپے فکس اور 12 لاکھ سے زائد رقم پر 11% ٹیکس عائد ہوگا، 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 1,16,000 روپے فکس اور 22 لاکھ سے زائد رقم پر 23% ٹیکس لگے گا، 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 3,40,000 فکس ٹیکس لگے گا، جبکہ 32 لاکھ سے زائد رقم پر 30% ٹیکس عائد ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی کی تمام سلیب میں انکم ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز ہے، جبکہ 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی رکھنے والے تنخواہ دار ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 12 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ملازمین پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ روپے تک آمدنی رکھنے والے ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ناظرین، حکومت نے آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کیش آن ڈیلیوری خریدار میں کپڑوں اور ملبوسات پر 2% ٹیکس لگے گا، الیکٹرانک اشیاء پر 0.25% ٹیکس دینا ہوگا، دیگر اشیاء پر 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ ای کامرس کے ذریعے 10,000 روپے تک کی خریداری پر بینک یا آن لائن ادائیگی کی صورت میں 1% ٹیکس لگے گا، 10 سے 20,000 روپے تک کی خریداری پر 2% ٹیکس دینا ہوگا، 20,000 روپے سے زائد کی خریداری پر 0.25% ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آن لائن کاروبار کی وجہ سے ریٹیلرز کو نقصان پہنچا ہے۔ کوریئرز اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والے ادارے ای کامرس کاروبار والوں سے 18% ٹیکس وصول کر کے حکومت کو جمع کرائیں گے۔ بڑے اور آپ کو بتائیں کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے کمانے والوں پر ٹیکس دینا ہوگا۔ نیا قانون آ گیا۔ نئے قانون کے تحت آڈیو، ویڈیو اور میوزک سٹریمنگ سروسز سے کمائی شامل ہے۔ ٹیلی میڈیسن، ای لرننگ، کلاؤڈ سروسز، آن لائن بینکنگ سروسز بھی ایکٹ کے دائرے میں آئیں گی۔ ای کامرس، ای سٹور اور آن لائن مارکیٹ بھی ٹیکسز کی زد میں۔ غیر ملکی کمپنیوں سے پاکستان میں اشیاء یا خدمات کے بدلے بھیجے جانے والے رقوم پر بینک اور ایکسچینج کمپنیاں 5% ٹیکس جمع کریں گی۔ یہ ٹیکس اگلے ماہ کی 7 تاریخ سے پہلے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں گے۔ ٹیکس کاٹنے اور جمع کرانے میں ناکامی پر متعلقہ بینک یا ایکسچینج کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں موجود رکھنے والا ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم حکومت کو 3 ماہ کی رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہوگا۔ بین الملک سے خریداری میں ادائیگی کا ذمہ دار ادارہ بھی سہ-ماہی رپورٹ جمع کرائے گا، جس میں خریدار کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ادائیگی کی تاریخ اور رقم درج ہوگی۔ رپورٹ جمع نہ کرانے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اگر 3 ماہ تک غیر ملکی کمپنی ٹیکس دینے سے اجتناب کرے تو بینک یا ایکسچینج کمپنی اس کی طرف سے رقوم کا بھیجنا معطل کر دیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف سخت فیصلے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں ایف بی آر کو مزید اختیارات مل گئے۔ ایف بی آر کمشنر رجسٹرڈ نہ ہونے والے افراد اور کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرا سکے گا۔ نان رجسٹرڈ افراد اور کمپنیوں کے غیر منقولہ جائیداد کی ٹرانسفر پر پابندی لگائی جا سکے گی۔ کمشنر ایف بی آر نان رجسٹرڈ افراد اور کمپنیوں کے کاروبار کی جگہ اور منقولہ جائیداد ضبط کرا سکے گا۔ بارکوڈ یا ٹیکس سٹیمپ کے بغیر اشیاء کو فوری ضبط کیا جا سکے گا۔ ناظرین، پیٹرول مزید مہنگا۔ پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں بھی مہنگی۔ فرنس آئل سے بننے والی بجلی پر بھی مزید ٹیکس لگے گا۔ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کاربن لیوی عائد، پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی دینا پڑے گی۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی تمام گاڑیاں بشمول ہائیبرڈ کاروں پر سیلز ٹیکس کی شرح 8.5% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی۔ 850 cc سے کم ہارس پاور کی نئی گاڑی پر سیلز ٹیکس کی شرح 12.5% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی اور 2026-27 میں کاربن لیوی کی شرح 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کے فروخت اور درآمد پر انجن کیپیسٹی کے مطابق لیوی عائد کی جائے گی۔ انرجی وہیکل پالیسی پر عمل کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔
नाज़रीन, वफाकी बजट में इनकम टैक्सेस की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम का फैसला किया गया है। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा करवाने वाले गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने वालों पर बाज़ बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी आयद होगी। फाइलर्स को अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली ज़राए के सबूत पेश करना होंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्सेस की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। हुकूमत का कारपोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्सेस में 0.5% कमी का फैसला किया गया है। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों के ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को भी फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। आइंदा माली साल के बजट में पानी और आबी ज़खायर से मुतल्लिक जंगी बुनियादों पर इकदामात का आज़म किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा। पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताहम इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने आबी वसाइल में जंगी बुनियादों पर इजाफा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। जल्द ही इस वाले से एक तफसीली हुकूमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारहियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तोगयानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इकदामात और मौसमियाती तब्दीली के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के लिए माली साल 2025-26 के लिए 6.64 अरब रुपए अखराजात के लिए मुख्तस। मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 3.26 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। असासाजात की खरीदारी के लिए 42 करोड़ और तरक्याती कामों पर 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर 23 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जबकि ग्रांट, सब्सिडीज और कर्जाजात की माफ़ी की मद में 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1.03 अरब रुपए रखा गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माली साल 2025 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके, प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए गए। शादी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 17,073 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% और अफराती ज़र 7.5% रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई। बजट खसारा GDP की 3.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस 2.4% रखने का हदफ मुकर्रर किया गया। FBR के महसूलात का हदफ 14,131 अरब रुपए, जबकि सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। विफाकी नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 5,147 अरब रुपए, खालिस आमदनी 1,172 अरब रुपए रखी गई है। विफाकी हुकूमत के कुल अखराजात 17,573 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मख्तस किए गए। दिफाई बजट 2,250 अरब रुपए, जबकि सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखे गए। ग्रांट्स की मद में 1,928 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए, जबकि कराची से चमन शारा N25 के लिए 100 अरब रुपए मख्तस किए गए। ज़राअत को 4 अरब रुपए और हायर एजुकेशन को 38.5 अरब रुपए की रकम दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के 31 मंसूबों के लिए 4.8 अरब रुपए और उमूमी तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मख्तस किए गए। दारिश स्कूल के कयाम के लिए 9.8 अरब रुपए, सेहत के 21 बड़े मंसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए और गवर्नेंस के लिए 11 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबिनेट से खिताब में कहा कि मुल्क की माइशत बेहतर हो रही है, पूरी कौम की काविशों से मुश्किलात से बाहर निकल आए। हुकूमती इक़दाम की बदौलत अहदाफ को हासिल करने में मदद मिली। वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। जंग में दुश्मन को हमने शिकस्त फाज से दो चार किया। भारत सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिदे में कोई ऐसी शिक नहीं है और ना हम बर्दाश्त करेंगे। हम अपने पानी के एक एक कतरे का दिफा करेंगे। की मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में उसको शिकस्त फाश दी है। नाज़रीन, बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर ने बात की इजाज़त का मुतालबा किया। इजाज़त न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने डेस्क बजाए और नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बजट में तनख्वाहें जितनी बड़ी हैं इसमें हमारा तो गुजारा हो जाता है, लेकिन आम लोगों का गुजारा नहीं होता। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि अपने खर्चे कम करे, मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और टीम को बजट पर मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पहला अवाम, किसान, मुलाजमीन और सनत का दोस्त बजट पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ में मुआवन साबित होगा। मरियम नवाज का कहना था कि नया बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। माशरत की तरक्की का फ़ायदा हर फर्द तक पहुँचाएंगे। IMF प्रोग्राम से निजात का अज़्म रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। बजट में मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया। महंगाई में कमी आएगी। तनख्वाह में 6% इजाफे की थी, फिर 10% कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि टैक्स स्लैब्स के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया है। इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई है। बजट में माशियत की ग्रोथ पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। टैक्स स्लैब के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया। इरफान सदीकी ने यह कहा है कि इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई है। इरफान सदीकी ने मजीद कहा है कि बजट में माशियत की ग्रोथ पर खुसूसी तवज्जो दी गई। ख़ास तौर पे अच्छी बात है कि जो इनिशियल प्रपोजल थी 6% इंक्रीज़ की, वो 10% पे आ गई और फिर उनको बड़ा एक रिलीफ दिया गया है। उनकी टैक्स स्लैब्स के अंदर उनका जो इनकम टैक्स की शरह थी उसमें कमी की गई है, तो एक्चुअल रिलीफ जो है वो 10 से कहीं ज़्यादा हो गया है। इस बजट के अंदर जो इकानमी की ग्रोथ है, GDP है, उस पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है कि ये बड़े। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि बजट में आवाम के लिए हवा के गर्म थपेड़े हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। सिर्फ एक ताज़ा हवा का झोंका है तनख्वाहदार तबके के लिए। हवा के गर्म थपेड़े जो आपने इस्लामाबाद के मौसम में आपने सहे हैं, सिर्फ एक हवा का ताज़ा झोंका है तनख्वाहदार तबके के लिए 6 लाख से 12 लाख उनकी वो गर्दी के वजह जो 12 लाख कमाएगा वो टैक्स देगा, 6 लाख कमाने वाला नहीं सालाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का बजट पर रद्द अमल। कहती हैं कि ये बजट न अमीरों का है न गरीबों का है, ये IMF का बजट है। उन्होंने कहा कि आज तो अमीर भी मायूस है, गरीब भी मायूस है। कुछ अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। महंगाई और इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आई है। ज़राअत बैठ गया है, ज़राअत तारीकियों में डूब रही है। नाज़रीन, JUIFA के रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान का बजट पर रद्द अमल। कहा कि बजट में किसी भी तरीके से आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बजट में हमेशा महरूम तबका ही पिस कर रह जाता है, जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती। तालीम और सेहत पर फोकस करना चाहिए।
होती खाने, हमेशा इसी तरह से बजट पेश होता आया रहा है और वो भी एक नॉर्मल, समझे कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर एक बजट पेश हो गया। इसमें किसी भी तरीके से जो है आवाम के लिए कोई रिलीफ है ही नहीं और हमेशा से ही भी कोई रिलीफ नहीं रहा, क्योंकि पिस्ता हमेशा जो है वो महरूम तबका ही है जिसके पास रोटी भी नहीं होती खाने के लिए। तालीम, आपकी सेहत, इस तरह की जो मामलात हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली सबीन गौरी का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बजट पर हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम हुकूमत से बात करेंगे। आज बजट पेश किया गया है, इसके बाद आपस में मुशावरत होगी। बजट में तब्दीली आनी चाहिए, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब उसके बाद जो है हमारे भी कुछ उस पर तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो वो हम उनसे बात करेंगे बजट पर। अब उसके बाद जो है वो आपस में जाहिर सी बात है, आपको पता है, मुशावरत होगी, बैठेंगे, इस पे बात करेंगे। फिर बजट में तब्दीली आनी चाहिए, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि महंगाई में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। अगर महंगाई में कमी आई है तो गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है? तनख्वाहों की निस्बत पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया गया। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को हम सिफर पर ले गए थे। 2021 में हमारी ग्रोथ 5.7% और 2022 में 6.7% थी। 2.7% ग्रोथ फार्म 47 की पैदावार है। पेंशन का 7% बढ़ाया और तनख्वाहदार का 10%। पेट्रोल पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम सिफर तक ले आए थे। 2021 में हमारी ग्रोथ थी 5.7, 2022 में हमारी ग्रोथ थी 6.2%। तो अब 2.7% आपकी ये फॉर्म 47 की ग्रोथ है। वफाकी बजट 2025 और 26 खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीद की कोई किरण न बन सका। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाह कहते हैं कि फाटा के जम अजला के लिए 100 अरब रुपए दिए जाने का वादा था। उन्होंने कहा कि मगर हालिया बजट में सिर्फ 65 अरब का मुख्तस किया जाना नहायत तशवीशनाक अमर है। इस रकम से जम अजला पसमानदगी और महरूमियों से नहीं निकल पाएंगे। आफ्ताब शेरपाह ने कहा कि वफाकी PSDP में भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई बड़ी स्कीम का न होना भी सूबे के साथ इस्तेहसाली सलूक दिखाई देता है। माराकन डिवीजन, फाटा और दीगर इलाकों पर सेल्स टैक्स के इतलाक से इन इलाकों के अवाम पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। नाज़रीन, यूट्यूबर रजब भट्ट और सरदार रहमान डोगर समेत 5 अफराद के खिलाफ नशावर चीज़ पलाकर खातून से ज्यादती करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा लाहौर के थाना नवाब टाउन में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक सलमान हैदर नामी नौजवान से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मुतासरा खातून ने कहा कि सलमान ने बहरिया आर्चर्ड एक घर में बुलाकर मुझे नशावर चीज़ पलाकर ज्यादती की और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। FIR में सलमान, रजब भट्ट, रहमान डोगर, जवाद हैदर, जहांगीर भट्ट को भी नामजद किया गया है। बरतानिया के दाल हुकूमत लंदन के मेयर सादिक खान को शाह चार्ल्स की जानिब से सालाना एजाज़ात की फहरिस्त में नायब हेड से नवाज दिया गया है, जिसके बाद उन्हें सर सादिक खान कहा जाएगा। ये एजाज़ उन्हें बरतानिया में अवामी खिदमात, खुसूसन बतौर मेयर लंदन, उनकी नुमाया क़यादत और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर दिया गया है। सादिक खान बरतानवी तारीख में पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई नजाद शख्सियत हैं जिन्हें इस आला शाही एजाज़ से नवाजा गया। सादिक खान रुकन पार्लियामेंट, वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बादज़ां दोबारा लंदन के मेयर मुंतखब हुए। उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सस्ती ट्रांसपोर्ट और अमन और रवादारी को मरकजी हैसियत दी है। एजाज़ मिलने पर अपने बयान में सादिक खान का कहना है कि ये मेरे ख़ानदान, ख़ास तौर पर मेरे वालिदैन की कुर्बानियों और मेहनत का एतराफ़ है। मैं इस मुल्क का ममनून हूँ जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने सादिक खान को इस एजाज़ पर मुबारकबाद दी और कहा कि यह बरतानिया में तनू और शमूलियत का रोशन इस्तिआरा है। सर का खिताब बरतानिया का एक तारीखी और बावकार एजाज़ है जो सदियों से इन शख्सियात को दिया जाता रहा है जिन्होंने कौम की खिदमत में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई हो। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।